Hi friends, on continuation of chapter number 12. In this session we will start with electron displacement effect in covalent bond. In an organic molecule, the electron displacement maybe takes place either under the influence of an atom or in the presence of this attacking reagent. Once again, in organic molecule, electron displacement maybe takes place either under the influence of an atom or in the presence of attacking reagent. The important types of electron displacement reactions are inductive effect. ये सारे के सारे वन शॉट नॉट इंडिविजुअल है. एक इंडक्टिव इफेक्ट पे पूरा डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, थर्ड रेजोनेंस इफेक्ट एंड फोर्थ इज हाइपर कंजुगेशन. So in this session we have to discuss four major part: inductive effect, electromagnetic effect, resonance effect and hyperconjugation. So let's start one by one. First is inductive effect. Now inductive effect is also two types, that is positive inductive effect and negative inductive effect. Means plus I effect and minus I effect. It is a permanent effect, arises due to the shift of the sigma electrons through a carbon chain in the presence of an atom or a group atom attached to this carbon atom chain. This effect propagates only a CC sigma bond, and this effect decreases rapidly as the number of carbon atom increases. Most important line, the effect is decreases as the number of carbon atom increases. अब ये सारी चीज पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एक लेमन एग्जांपल के साथ डिस्कशन करना चाहूंगा. What actually means by positive inductive effect, what actually means by negative inductive effect. तो सबसे पहले पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल. दिस इज अ कॉमन प्लॉट. सीपी स्टैंड्स फॉर कॉमन प्लॉट. ये बड़ा सा कॉमन प्लॉट है और उसके एडजेसेंट में सारे बंगलो सीरीज में, दैट इज ए बंगलो, बी बंगलो, सी बंगलो एंड डी बंगलो. इफ दिस कॉमन प्लॉट इज हाईली मेंटेन्ड, ये सोसाइटी पूरी अच्छे से मेंटेन की हुई है, सो देयर इज अ लश ग्रीन गार्डन ओवर हियर, देयर इज अ वॉकिंग ट्रैक ओवर हियर, किड्स जोन इज देयर, सीनियर सिटीजन के लिए बेंच रखी हुई है एंड सेंटर में छोटा सा पॉन्ड भी बनाया हुआ है और जिसके अंदर फाउंटेन भी है. सो इफ यू आर स्टेइंग इन बंगलो नंबर ए, देन योर बंगलो हैविंग अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ दिस कॉमन प्लॉट. आपकी विंडो में से ये क्लियरली अच्छे से फर्स्ट फ्लोर पे क्लियरली कॉमन प्लॉट, लश ग्रीन गार्डन मिलेगा. एवरीथिंग यू कैन सी फ्रॉम योर विंडो. So your common plot having a really very good advantage just because your common plot and your bungalow wall is common. So आपके पास ये extra advantage हुआ just because this is a well maintained society. B को दिखेगा but थोड़ा सा कम दिखेगा just because A का hindrance होगा. C and D does not have that much facilities. So this is called positive inductive effect. Means your adjacent having a very good influence on this. अब देखिए जैसे जैसे चेन बढ़ती गई ये इंडक्टिव इफेक्ट कम होती जाएगी. अब दूसरा उल्टा सोचिए, मान लीजिए आपका बंगलो यहाँ पे है, ये कॉमन प्लॉट प्लेन सिंपल सा ग्राउंड है और जितने भी सोसाइटी के फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस यहीं पे होते हैं. मान लीजिए किसी के घर पे फंक्शन है, उसका संगीत संध्या यहाँ पे चल रहा है. सो लाउड नॉइस, डीजे इज देयर, ह्यूज स्पीकर्स आर देयर. So your bungalow having a highest noise just because your bungalow is common plot, दोनों के बीच में एक ही वॉल है, कॉमन वॉल. तो जितने भी स्पीकर्स और जो सारी चीज गतिविधियां हो रही ये हाईएस्ट अफेक्टेड होगा. ये नॉइज थोड़ा सा कम हो जाएगा बी में पहुंचते पहुंचते, सी में थोड़ा सा और ज्यादा कम हो जाएगा एंड शायद डी इज फार अवे फ्रॉम दिस कॉमन प्लॉट, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी नॉइज नहीं आएगा. So that is called as negative inductive effect. So you can now clearly assume by this two example कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शोर है या फिर कुछ इवेंट चल रहा है. So this bungalow is highest affected. Why? Because this is a common directly attached है. B थोड़ा सा दूर A से तो अटैच्ड है ही, तो थोड़ा सा आवाज तो यहाँ पे भी जाएगा. C बहुत ही कम जाएगा. If you are close all the windows and doors तो बहुत ही कम जाएगा. And D does not affected just because they are far away from this. सो केमिस्ट्री के ऊपर चले जाओ. क्लोरीन, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज.
Carbon is electron positive species. This carbon is directly affected with this chlorine due to this having a somewhat electron negativity. इसके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जाएगी. ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो थोड़ी सी कम, बट यहाँ पे भी जाएगी. इसमें बहुत ही कम, but then after you get some, and this is almost free from this negative. Why? Because this carbon is far away from this chlorine, and due to this ये पॉजिटिवली चार्ज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा. वही एग्जांपल हमें सॉल्व करना है. लेट्स टेक एग्जांपल 1 chlorobutane, that is CH3 CH2 CH2 CH2Cl. Here chlorine is more electron negative than carbon, so the electron pair in CCl bond is shift towards to chlorine and it gets slightly negatively charged, that is called as delta negative on, and the carbon having slightly positively charged, that is delta plus. So carbon having slightly positive, delta plus, this having slightly negative, that is delta minus. This carbon attack electron density from the second carbon, so that second carbon gets relatively smaller positive delta, that is double delta plus, triple delta plus and quarter delta plus. So this is all about your negativity. यहाँ पे directly affected है, यहाँ से थोड़ी सी कम, यहाँ पे बहुत ही कम, and this is almost free from this chlorine just because chlorine is far away from this methyl. So this is all about your inductive effect. और आगे बढ़ते हैं inductive effect में. Here Cl atom attack electron towards it. So we can say that Cl atom has electron withdrawing effect of I, that is minus I effect, that is negative inductive effect. So the group which have ability to attract electron pair towards it, that is called negative inductive effect. Example are X means सारे halogens, nitro, cyano, carboxyl, CO and OR. The group which donate electron pair towards the chain, that is called as positive inductive effect, and the electron donating group examples are alkyl group, that is methyl, ethyl and etc. तो नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कैसे होगा, हमने कार्बोकैटायन के अंदर एक ऑर्डर पढ़ा था, अब वो समझने का टाइम आ गया है. देखिए दिस इज मिथाइल स्पीशीज, सिंपल CHHHCl. दूसरा एग्जांपल जो मैंने लिया है दैट इज प्राइमरी. प्राइमरी का मतलब क्या होता है, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. देखिए दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हैलाइड. Once again, halogen जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, one more carbon, that is methyl group. Basically this is methyl group, that is primary. Secondary के अंदर same, halogen जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो दो और मिथाइल के साथ जुड़ा हुआ है, that's why it's a secondary one. And this is tertiary, halogen जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो और तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, so that's why it's a tertiary one. So if I want to break down this CCl bond and this CCl bond, fine, तो कौन सा बॉन्ड इजीली टूट जाएगा और क्यों? Here in case halogen जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो और तीन मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, means this is plus I plus I plus I, more inductive effect are there, more branch or more crowding effect are there, and due to this CCl bond cannot break down very easily. ये Cl को जनरली तोड़ने नहीं देगा. Opposite to that, CCl this associate with two more carbon means one crowding, another crowding, and here in case only single one crowding, that is positive inductive effect. अब समझिए, अगर मुझे ये मिथाइल में से CCl का बॉन्ड तोड़ना है और इसमें से तोड़ना है, कौन सा जल्दी टूटेगा और क्यों? This bond easily break down. Why? Because this does not have any positive inductive effect, while in case this has really very high positive inductive effect. And due to this cannot break down very easily, while in case this break down very easily. So हमने इसीलिए कार्बोकैटायन की ऑर्डर पढ़े थे जिसके अंदर हमने पढ़ा था मिथाइल is less than to this primary one, is less than to this secondary one, is less than to this tertiary one. Means tertiary is more stable than secondary, then primary, and methyl is least stable कार्बोकैटायन. So this is all about your positive inductive effect. नेगेटिव के अंदर ये पूरा उल्टा हो जाएगा. जहां जहां ये मिथाइल ग्रुप है उसकी जगह पे आप NO2 ले सकते हो, CN ले सकते हो, COOH ले सकते हो, तो ये सारी की सारी चीज उल्टी हो जाएगी. मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज, तो ये जल्दी टूट जाएगा, ये उससे कम टूटेगा, ये उससे कम, और ये टूटेगा ही नहीं. व्हाई?
because no electronegative species are there, and due to this becomes really very stronger. But in case of negative inductive effect, positive inductive effect के अंदर methyl is less than to this primary one, is less than to this secondary one, is less than to this tertiary one. So this is all about your positive and negative inductive effect. Next is electromeric effect, that is E effect. It is defined as the complete transfer of a shared pair of pi electrons to one of these atoms joined by the multiple bond in the presence of an attacking reagent. It is a temporary effect. Most important, it is a temporary effect. It is possible only in a compound containing the multiple bonds. Most important चीज, ये सिंगल बॉन्ड में कभी नहीं देखा जाएगा, ये only applicable है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, that is alkene and alkyne में. This effect cancelled when the attacking reagent is removed from this reaction site. The shifting of an electron is shown by the curved arrow, that is just like this. ऐसे कर्व एरो से डिफाइन किया जाता है. एक एग्जांपल के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. दिस इज alkene plus HCN. Now HCN is nothing but H plus plus Cn minus. तो यहाँ पे दो अटैकिंग स्पीशीज होगा, फर्स्ट H plus and another is Cn minus. So you get final product is this H and Cn. फाइन. सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, वो समझना है हमें. सो नाउ आउट ऑफ दिस H प्लस इज पॉजिटिव, तो सबसे पहले आल्किन के ऊपर H प्लस अटैक करेगा. जैसे ही ये H प्लस अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब ये डिफाइन करेगा कि अटैक किसने किया है. H प्लस ने अटैक किया है, तो ये H तो जुड़ गया कार्बन के साथ, बट H के ऊपर रहने वाला पॉजिटिव चार्ज था वो चला गया नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन के ऊपर. Why? Because its valency is not satisfied. Carbon having 4 valency 1, 2 and 3. So यहाँ का पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट कार्बन पे चला गया, and this carbon is satisfied with hydrogen 1, 2, 3 and bond is 4th hydrogen 1. So likewise the species who attack, उसका जो चार्ज है वो एडजेसेंट कार्बन पे चला जाएगा. लेमन चीज याद रखिए, जो अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर चार्ज होगा वो एडजेसेंट कार्बन पे चला जाएगा. दैट इज अ सिंपलर वन. हियर द पाई इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड टू दिस एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट गेट अटैच्ड. अब नेगेटिव देख लीजिए, सेम आल्किन स्पीशीज, अटैक किसने किया, Cn माइनस ने. तो Cn के ऊपर माइनस चार्ज है, तो Cn जिस कार्बन के साथ जुड़ा एडजेसेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला गया. देखिए द स्पीशीज हैज नेगेटिवली चार्ज, तो Cn कार्बन के साथ जुड़ गया और Cn का नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट कार्बन के ऊपर चला गया. तो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मींस जो अटैक करने वाली स्पीशीज का चार्ज है वो एडजेसेंट कार्बन पे स्विच हो जाएगा. दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सेम ऊपर जो पड़ा वही है. हियर द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड ट्रांसफर टू दिस एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट डज नॉट गेट अटैच्ड. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर नेगेटिव. सो फाइनल लास्ट लाइन डिस्कशन कर लेते हैं. सो व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आर ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन, द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर electromeric effect. Next we moved on to this resonance effect. So let's start with the resonance effect. Once again resonance also having two, that is plus R and minus R. Resonating structures draw करके दिखाना पड़ेगा. Resonating structures किस हिसाब से draw करेंगे डिस्कशन करते हैं. It is defined as this polarity produced in this molecule by this interactions of this two pi or the between a pi bond and the lone pairs of electron present in an adjacent atom. The effect is transmitted through this chain, and there are two types of effect, that is plus R effect and minus R effect, that is positive resonance and negative resonance. Here the transfer of an electron away from an atom or the substituent group attached to this conjugated system, that is plus R effect in phenol. नेगेटिव से उल्टा होगा, हियर द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द एटम और द सब्स्टिट्यूशन अटैच्ड टू दिस कंजुगेटेड सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लस एंड माइनस आर इफेक्ट. रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिस्कशन करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्लस आर इफेक्ट इन फिनॉल. अब देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल.
फिनॉल के ऑक्सीजन के ऊपर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले ये नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे मींस यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेंगे. सो कार्बन ऑलरेडी हैविंग डबल बॉन्ड विद दिस एंड सिंगल बॉन्ड विद दिस, तो यहाँ का डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा एंड यू गेट नेगेटिवली चार्ज ओवर दिस कार्बन एंड यू गेट डबल बॉन्ड ओवर कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा एंड देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन. To balance this negatively charged, ये जो pi bond चला गया, balance this negatively charged, this double bond migrate over here to here. ये double bond है वो यहाँ से shift हो जाएगा यहाँ पे. Perfect. And due to this, you get negative charge at the end. Once again फिर से बता रहा हूँ, this non-bonding pair of electron कहाँ पे आ गया? यहाँ पे कार्बन पे. सो दिस नेगेटिवली चार्ज बैलेंस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया. देखिए, टू बैलेंस दिस नेगेटिवली चार्ज एडजेसेंट कार्बन माइग्रेट ओवर हियर, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यू गेट डबल बॉन्ड ओवर हियर, ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा यहाँ पे. एंड फाइनली दिस नेगेटिवली चार्ज गोज टू दिस कार्बन, ये कार्बन यहाँ से नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, यू गेट योर ओरिजिनल स्ट्रक्चर बैक. तो बेसिकली देखा आपने, कार्बन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, वो एक छोड़ के एक यहाँ पे नीचे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ से फिर एक छोड़ के एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया एंड बॉन्ड माइग्रेट होते रहे. ये डबल बॉन्ड सबसे पहले शिफ्ट हुआ यहाँ पे आया, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे आया एंड देन फाइनली यू गेट योर ओरिजिनल स्ट्रक्चर बैक. सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेजोनेंस स्ट्रक्चर. वंस अगेन दिस नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस कार्बन, ये डबल बॉन्ड माइग्रेट होकर चला गया अंदर, यू गेट नेगेटिव चार्ज ओवर हियर. टू बैलेंस दिस नेगेटिवली चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला गया, नेगेटिव चार्ज नीचे आ गया. देखिए, अब इसको बैलेंस करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया, यू गेट दिस एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला गया एंड फाइनली यू गेट योर स्ट्रक्चर लाइक दिस. अब उससे उल्टा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, अब उससे उल्टा होगा नेगेटिव में. अब नेगेटिव में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ माइग्रेट होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, ये नाइट्रोजन से ये बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉलोड होगा. पता चला, ये सिस्टम मींस बेंजीन रिंग से डबल बॉन्ड माइग्रेट होके कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर. टू बैलेंस दिस पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो जाएगा. फाइन. सो ये डबल बॉन्ड जैसे यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, कहां से, यहां से यहां, सो यू गेट पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर. टू बैलेंस दिस, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया एंड फाइनली यू गेट योर ओरिजिनल स्ट्रक्चर बैक. सो दिस इज ऑल अबाउट योर नेगेटिव रेजोनेंस. वंस अगेन दिस डबल बॉन्ड माइग्रेट फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन, you get positive charge over here. This double bond migrated over here, you get double bond over here, पॉजिटिव चार्ज नीचे, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एंड फाइनली यू गेट योर ओरिजिनल स्ट्रक्चर बैक. सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं 3 मार्क में. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट विद द सुटेबल एग्जांपल. So the presence of alternate single and double bond in an open or cyclic chain termed as the conjugated system. प्लस आर इफेक्ट कौन कौन देगा? हेलोजन, OH, OR, OCOR, NH2, NHR, NR2, NHOR. नेगेटिव कौन कौन देगा? COOH, CHO, CO, CN and NO2. This will give you this negative resonance effect. Last point of chapter number 12, that is called is hyperconjugation. Now hyperconjugation is hypothetical. मीन्स डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कितने पॉसिबल वे है वो आपको ढूंढने, दैट इज कॉल्ड इज हाइपर कॉन्जुगेशन. इट इज द परमानेंट इफेक्ट. In this effect of sigma electrons of CH bond and this alkyl group enter into this partial conjugation with this unsaturated system with the shade of p orbital. The sigma electron of CH get delocalized. Let's take example. अब देखिए, बेसिकली दिस इज C C C C C C के बीच में H H H H है. दिस इज CH3 CH2 प्लस. दिस इज CH3 CH2 प्लस को अगर आपको स्टेबिलाइज करना है तो एडजेसेंट कार्बन में से एक प्रोटॉन निकालना पड़ेगा एंड यू गेट योर CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो दिस इज योर सिस्टम. देखिए, इसको इलोबरेट करके लिखा हुआ CHHH CHH एंड पॉजिटिवली चार्ज.
Now, if I want to stabilize this species, I want to remove this either 1, 1, 1. ये तीन में से कोई भी एक H निकालना पड़ेगा. So कौन सा H निकलेगा? क्वेश्चन मार्क. कोई बोलेगा सर ये बाहर वाला निकलेगा. Somebody says सर ऊपर वाला निकलेगा. Somebody says नीचे वाला निकलेगा. तीन में से कोई भी निकल सकता है. Probability of removal of proton is known as hyperconjugation. So that's why the CH3 CH2 plus having 3 hyperconjugating structure. कौन कौन से देखिए. सबसे पहले ये ऊपर वाला चला गया तो that's why there is a plus charge. ये यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड ड्रॉ भी नहीं करना है. Just because कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड H H and CH CH. ये स्टेबल हो गया. CH2 CH2 हो गया. कोई पूछे सर ऊपर वाला ही क्यों जाए, बाहर वाला भी जा सकता है. Yes, you are right dear. Now this H plus CH H डबल बॉन्ड. सर ये बाहर वाला ही क्यों जाए, नीचे वाला भी जा सकता है. यस यू आर राइट डियर. तो ये H प्लस. सो बेसिकली टू गेट द स्टेबल कंपोनेंट टेंडेंसी टू रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने हाइपर कॉन्जुगेशन. याद रखिएगा जितने प्रोटॉन इतने हाइपर कॉन्जुगेशन. कितने प्रोटॉन थे? 3 थे. तो 3 प्रोटॉन निकल सकते हैं. एक ऊपर वाला निकल सकता है, प्रोबेबिलिटी नंबर 1. साइड वाला निकल सकता है, प्रोबेबिलिटी नंबर 2. नीचे वाला निकल सकता है, प्रोबेबिलिटी नंबर 3. So that's why 3 hyperconjugating structures are there. Hyperconjugation stabilize the carbocation because electron density from this adjacent sigma bond help in disappearing the positively charged. In general, greater the number of alkyl group attached to this positively charged of carbon atom, greater is the hyperconjugation. Means tertiary के अंदर सबसे ज्यादा hyperconjugation होगा, then secondary, then primary and methyl के अंदर सबसे कम होगा. किस हिसाब से? So here the tertiary carbocation having 9 hyperconjugation, isopropyl having 6 hyperconjugation, ethyl carbocation having 3 hyper. ये तो हमने ऊपर ही डिस्कस किया 3. अब 6 और 9 कैसे हुआ सर, वो नहीं पता चला. तो लेट्स डिस्कस. देखिए ये आइसो का मतलब CH CH3 CH3 positively charged. If I want to balance this positively charged, so either this carbon can remove one proton and make double bond over here. तो ये बन जाएगा. देखिए बना कि नहीं बना. Means you get CH2 double bond CH single bond CH3. Means this carbon can remove one proton and convert it into double bond. और सर ऊपर वाला ही क्यों प्रोटॉन रिलीज करे, नीचे वाला भी कर सकता है. यस कर सकता है. तो दैट यू गेट अनदर स्ट्रक्चर दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. नाउ हियर इन केस वी हैव अ 3 प्रोटॉन. तो 3 प्रोटॉन मींस 3 हाइपर कॉन्जुगेशन. सो खाली ये स्पीशीज के अंदर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन बन सकते हैं. ऊपर वाला, साइड वाला, नीचे वाला, जो ऊपर हमने डिस्कस किया ऐसे ही. सो 3 में से कोई भी एक प्रोटॉन जाएगा. यू गेट डबल बॉन्ड मींस 3 हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर दिस केस. लाइकवाइज नीचे भी मिथाइल है, वहां पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है, तो एक प्रोटॉन यहां से भी जा सकता है. तो यहां पे भी सेम फिनोमिनन. एक लेफ्ट साइड वाला, एक डाउन साइड वाला, एक अप साइड वाला. 3 में से कोई भी एक जा सकता है. तो दैट्स व्हाई 3 हाइपर कॉन्जुगेशन ओवर हियर. सो 3 ओवर हियर, 3 ओवर हियर, टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड इन केस ऑफ आइसो. नाउ वी हैव अ नियो स्पीशीज. नियो स्पीशीज मीन्स टर्शरी. CH3 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 टर्शरी है. अब 3 प्रोबेबिलिटी बनेगी. either downside remove one proton, that's why we have a double bond over here. either this left side, either upside. डाउन साइड पे भी मिथाइल है तो 3 प्रोटॉन में से कोई भी एक निकल सकता है. तो दैट्स व्हाई 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर. यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आने के लिए यहाँ पे भी 3 हाइपर कॉन्जुगेशन. एंड ऊपर से में भी एक प्रोटॉन निकाल सकता है तो यहाँ पे भी 3 हाइपर कॉन्जुगेशन. सो 3 + 3 + 3 टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग इन केस ऑफ टर्शरी. इन केस ऑफ सेकेंडरी दैट इज आइसो के अंदर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे. 3 यहाँ से 3 यहाँ से, टोटल 6. In case of neo, there is 3 methyl species, so total 9 hyperconjugations are there. So this is all about your hyperconjugating structures, and this is all about your chapter number 12. मैंने प्रीवियस सेशन में भी बोला था बहुत सारे बच्चे पर्सनली आके खुद के डाउट सॉल्व करवा के जा रहे हैं. सो दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट. आप लोगों को भी डाउट होगा, डेफिनेटली होना ही चाहिए. So if you have any doubt, please prior appointment ले लीजिए मुझसे. पर्सनली आके 1-to-1 डिस्कशन करके clear your doubts.
फाइन, फिर लास्ट में सब पाइल अप नहीं हो जाना चाहिए. If you have any doubt, if you have any difficulty, please message me, book your appointment and clear your doubts. This is all about your today's session. Thank you so much.